Today we will do pre-board examination of ड्यूसेन बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें बच्चे जो सबसे विल डू द सैंपल। मैंने अभी पीडीएफ भी भेजी है इसकी बना के। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, a point P is reflected to P dash in the origin. If the coordinate of P dash are 2, 5, then the coordinate of P are, yes Akshara, P के coordinate क्या होंगे? -5. That is C option is the correct one. Second, origin के साथ दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं ना। Second part, if a tank of diameter 14 meter has been dug to the depth of 21 meter, then the volume of tank is, if a tank of diameter 14 meter has been dug to the depth of 21 meter, 21 meter की depth तक, मतलब this is the diameter, this is the height, volume of the tank is, yes Arshia, volume So pi r square h. diameter से radius आ जाएगा 7, height 21 meter, कैलकुलेट कर लोगे बेटा पाई आर स्क्वायर एच, because it is cylindrical shape now, diameter and depth is given, that's why this is a cylindrical in shape. Now the next sum, the ratio in which the x-axis divide the line joining this and this. Third part, yes Kanishka. Yes, sir. Find the ratio in which the x-axis divide the join of -3, 6 and 2, -8 by x-axis. X comma 0. X comma 0. A ratio is to be taken as 3:4. why 3:4? Oh no, sir. So K/1. हाँ, अब हमें इन दोनों में से किसकी वैल्यू पता है? 0. 0, that I mean is y coordinate. y coordinate. Formula So m1 into x2 plus m1 into y2 is plus m2 into y1 over m1 plus m2. yes, y coordinate लिया है तो y की this into this and this into this. y के प्लेस पे 0, m1 k, y2 -8 plus m2 1, y1 6 अपॉन k plus 1. k plus 1 इस साइड आके 0 ही बन जाएगा, -8k plus 6 is equal to 0. -8k become +8k in this side, 6 as like, and k we get 6 upon 8, 3 upon 4, that is 3:4 is the answer. Okay, now the fourth part. The class marks of the median class or the given distribution. Yes Mahi. Yes sir. So first we will find the cumulative frequency दी हुई है तो sir 30/2 15. Yes, 30/2 जो लास्ट टर्म है बेटा, 30/2 15 आ जाएगा। 15 इन दो टर्म्स के बीच में लाई कर रहे हैं ना CFI में से, सर 20 + 30/2, तो दिस इज द मीडियन क्लास। इन दोनों का सम, क्योंकि हमने क्लास मार्क्स फाइंड करने हैं ना, क्लास मार्क का अदर नेम क्या है? मिड वैल्यू। 20 + 30 50, 50/2 25, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिफ्थ पार्ट, yes Swarnalakshmi, the mode of the frequency distribution can be determined graphically from histogram, ogive, frequency polygon के पाई चार्ट। हिस्टोग्राम ऑप्शन है। यस, हिस्टोग्राम ऑप्शन से बेटा। याद है ना कि हिस्टोग्राम में कैसे होता है? ऐसे मान लो दो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं, उसको इसके साथ ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो ये पॉइंट आ जाता है उसके नीचे, है ना? याद है ना?
Okay. Yes, Khushbu. Two chords AB and CD of a circle intersect externally at point P. Khushbu. Yes, sir. Two chords AB and CD of a circle intersect externally. Externally मतलब प्रोड्यूस करने पे at point P. If PC total जो PC given है वो 15 है. CD is 7. AP is given 12. We have to find AB. AB को बच्चे X ले लें. Yes, sir. What is PB? 12 minus x. Now, how we can Sir- find X? So then AB into BP is equals to AB PC. into BP. AB into BP. No, sir. AP into BP. PB Is equal- into PA. Yes, sir. Hmm. Is equals to PC into PD. Yes, PD into PC. वो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. PB बेटा 12 minus X. PA 12. 12. PD 8 आ 15. जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. टोटल 15 है, उसमें से 7 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा. हाँ, sir. PC 15. इसमें से X फाइंड कर सकते हो ना अभी. Yes, sir. देखो जब भी दो कोड्स आगे प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट से इस पॉइंट तक दिस इनटू कंप्लीट. ओके, Yes, sir. समझ आ गया बच्चे? ये कर लोगे एक्स फाइंड इसमें से. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट सम. The slope of line perpendicular to the line this 3x is equal to 4y plus 1 is there. 11, sorry. The slope of line perpendicular to this line. Yes, Arshia. Yes, sir. हमने एक स्लोप फाइंड करनी है उस लाइन की जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे. Just tell me बेटा. So 4y is equals to 3x minus 11. 4y अपने प्लेस पे, 3x minus 11. 11 इस साइड आके माइनस. इसको मैं बच्चे ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है, इक्वल है दोनों. 4y इसके इक्वल है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आशिया? 3x upon 4 minus 11 upon 4. यस. y is equal to mx plus c के साथ कंपेयर करेंगे. m1 लिख लो बेटा. ठीक है. What is the value of m1? 3 upon 4. कंपेयर किया तो इस लाइन की, इस इक्वेशन की स्लोप आ गई बेटा. अब हमने फाइंड क्या करना है? स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. देन व्हाट वी कैन डू? m1 into m2 is equal to minus 1. यस. जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 की इक्वल होती है. m1 3/4 है, m2 एज लाइक, m2 कितना आ जाएगा अर्शिया? Minus 4 upon 3. -4/3 is the answer. D option is the answer बच्चे. cos square क्यू -1 upon sin square क्यू. Yes, Akshara. cos square क्यू as like 1 upon sin किसके इक्वल होता है अक्षरा? Sir, cosec square q. माइनस, देखो माइनस अपने प्लेस पे, cosecant square क्यू. अब cot square क्यू माइनस cosecant square क्यू किसके इक्वल होता है अक्षरा? Sir, 1. नो बेटा, cosecant square क्यू माइनस cot square क्यू 1 होता है. जब हमने cot square क्यू माइनस cosecant square करना है तो ऐसे करो, माइनस कॉमन ले लो तो ये पहले आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ना. तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, माइनस cot square क्यू.
cosecant square theta minus cot square theta 1, so -1 is the answer. Okay, ठीक है अक्षरा? Yes, sir. Now, yes, Kanishka. Cards marked with number 1 to 20 are well shuffled and a card is drawn at random. What is the probability that the number on the card is perfect square? Yes, Kanishka. Sir, in 20 perfect squares are 4 Which and one? 9. 4, 1, 4, 9 16. and 16. These are the So four we- numbers between from 1 to 20 which are perfect square. ठीक है, तो 4 upon 20 probability क्या आ जाएगी? 4 upon 20 perfect square number की. कट किया 1 upon 5 is the answer. The option. Next one. The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. Ratio of their volume. यहीं पे कर देता हूं बच्चे मैं. Yes, Khushbu, volume of cylinder formula. Sir, volume of cylinder, yes, sir. Pi r square h. Pi r1 square h1 आ जाएगा ना, और Yes, सेकंड sir. का बेटा पाई r2 स्क्वायर h2. H2. पाई से पाई कैंसिल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2. Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. Yes, sir. r1 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर h1 है, मतलब मल्टीप्लाई है ना, अभी भी तो मल्टीप्लाई है. अब r1 अपॉन r2 हमें गिवन है 2:3, तो स्क्वायर Yes, करेंगे sir. तो 4:9 आ जाएगा. हाँ जी sir. एंड h1 अपॉन h2 5/3. 5:3, that is 5/3. कुछ भी कट नहीं हो रहा. 20/27 is the answer. Yes, The sir. option. समझ आ गया बच्चे सबको कि कैसे करना है? कुछ भी नहीं है. Understood? Yes, sir. Next one. मुझे एक बात और बताओ, किसी को कोई कौन सा चैप्टर नहीं आता? Sir, height or distances. हाइट एंड डिस्टेंसेस और equation of a line. The trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री, height and distance and Sir, equation of line. tangents. Equation of a line. टेंजेंट किसको? माही को नहीं आता? Yes, sir. Sir, चलो. आता है पर अच्छे से नहीं. Yes, sir. Sir, equation of a line में. हाँ वो तो हो ही गया बेटा. ये 4 चैप्टर चलो कर, कल से हम ये 4 चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, लाइन वाइज शुरू कर लेते हैं. ओके, Yes, sir. क्लास मॉर्निंग में लगेगी क्योंकि इवनिंग में और सर बिल्कुल. एक बार वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी करा दीजिएगा थोड़े, मीडियन और ओजाइव. हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो तो एक दिन में हो जाएंगे. हाँ जी, सेक्शन बी बेटा. Two vertices of triangle are this and this. Find the vertex given that the centroid is this. Two vertices of triangle given है, centroid given है. Centroid का फॉर्मूला माही. Sir, x is equals to x1 plus x2 plus x3 by 3 and y is equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3. ये बच्चे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दिए हैं ना, मतलब x and y गिवन है. दिस इज ट्रायंगल के वर्टिसेस जो हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने फाइंड करनी है. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, दैट मींस x3 y3 वी हैव टू फाइंड. x किसके इक्वल? x1 plus x2 plus x3 upon 3 ना, तो x के प्लेस पे 2 आ जाएगा. x1 3, x2 -7 प्लस x3, जो 3 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 - 7 -4 plus x3 and x3 we get 10. x3 की वैल्यू आ गई बेटा. ऐसे y3 फाइंड हो जाएगा. कर लोगे ना? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Nazreen. A box contains 600 screws. 600 screw हैं. 1/10 are rusted. One screw is taken out at random from the box. Find the probability that it is a good screw. 600 screw 1/10 are rusted. तो rusted कितने होंगे? स्वर्णलक्ष्मी
स्वर्ण लक्ष्मी? So 60. Yes, 60. 1/10 of 600. 1/10 of 600 मतलब into 600, 60 आ जाएंगे ना. And one screw is taken a good screw. तो good कितने रह जाएंगे बेटा? टोटल 600 है, उसमें से इतने रस्टेड हो गए. 600 minus 60, 540 यार. गुड वन. अब एक स्क्रू बीच में से निकाला. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गुड स्क्रू. तो 540 अपॉन 600, 0 कट, 6 के टेबल में 9, यहाँ पे 10, 9 upon 10 is the answer. Okay. Now the next sum. Given that AB parallel to CD, ABCD is a cyclic quadrilateral. ये साइड प्रोड्यूस है, तो एक्सटीरियर एंगल हमें 80 गिवन है और ये वाला एंगल 25 है. फाइंड CAD. CAD ये वाला एंगल फाइंड करना है. Yes, Akshara, how we can find this one? Yes, sir. Sir, angle BCE is equal to angle BAD. Reason exterior opposite angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle. Exterior opposite angle. Sorry, sir. Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to interior opposite angle. Yes, इसका रीजन साथ में लिखना पड़ेगा. Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. ये complete angle दोनों का sum, इसके इक्वल 80 के इक्वल 25 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा CAD. 80 minus 25, 10 minus 5 5, 7 minus 2 55 डिग्री. पहला आंसर आ गया. अब सेकंड पूछा है CBD. CBD ये वाला एंगल पूछा है, तो अर्शिया ये वाला एंगल कितना होगा? आवाज नहीं आई अर्शिया तेरी. Yes, sir. ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? नहीं पता? No, sir. चलो अर्शिया ये बताओ बच्चे, ये वाला एंगल कौन सी आर्क से बन रहा है? Sir, DC. DC आर्क से कोई और एंगल बन रहा है? Yes, sir. DAC. तो इक्वल नहीं होंगे. Yes, sir. रीजन? Angle in alternate यस, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट. सेकंड पार्ट भी हो गया. segment. ADC ये वाला एंगल फाइंड करना है बेटा. नाउ हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल? Sir, co-interior angle. yes. चाहे तो को इंटीरियर ले लो Sir, या ये वाला angle एंगल ACD 25 ले लो बेटा. 25. एंगल ACD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसके बाद तीनों का सम 180. वैसे भी कर सकते हैं. अगर इन दोनों का सम 180 करना है बेटा तो भी ठीक है, तो भी गलत नहीं है बच्चे. जैसे मर्जी करो, ठीक है. हो जाएगा 100 आ जाएगा. ये समझ आ गया ना कैसे आया 100? Yes, sir. Yes. सबको पता चल गया? स्वर्ण लक्ष्मी, नाजरीन, कनिष्का, खुशबू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next sum. Tan Q upon 1 minus cot Q plus cot Q upon 1 minus tan Q is equal to 1 plus tan Q plus cot Q. प्रूफ करना है. This one we have to prove. कौन करवाएगा? सर मैं ट्राई करूं? चलो करवाओ. सर हम लोग कॉट को भी tan के टर्म्स में लिख लेंगे पहले. tan. देखो इसको 3 मेथड से कर सकते हैं. चाहे तो सबको बच्चे साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लो, चाहे सबको tan में कन्वर्ट कर लो, चाहे सबको कॉट में कन्वर्ट कर लो. अब ये बोल रही है कि कॉट को tan में कर लो, तो हम कर लेते हैं. tan Q as like नीचे 1 minus 1 by tan Q.
वेरी गुड। सर अगर हम सम ऐसे ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दे पहले और बाद में एंड में हम कन्वर्जन करें? पहले बच्चे कैसे करोगे? ना तो एलसीएम सेम आएगा, ठीक है, यहाँ tan क्यू है, यहाँ cot क्यू है, बहुत लेंथी हो जाएगा वो, और कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। कन्वर्जन स्टार्टिंग में ही करनी होती है बच्चे, ठीक है कनिष्का? हाँ जी, यस सर। 1 माइनस tan क्यू। सर अब tan एलसीएम लेंगे। हाँ जी, जब तक हम एलसीएम नहीं लेंगे तब तक हम ऊपर नीचे नहीं लेके जा सकते। tan क्यू इज द एलसीएम, tan क्यू क्या? -1। tan क्यू -1। यहाँ पे बच्चे 1 अपॉन tan क्यू ऐसे रहने दो, वैसे नीचे लेके जा सकते थे, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में ले जाएंगे। अब tan से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये मेन लाइन है, मेन लाइन का ध्यान रखना होता है। tan क्यू अपने प्लेस पे रहेगा, ये अपने प्लेस पे रहेगा, ये ऊपर आएगा, तो क्या आ गया? tan स्क्वायर tan क्यू स्क्वायर क्यू। अपॉन tan क्यू -1। यहाँ पे बच्चे 1, tan क्यू नीचे चला गया, किससे मल्टीप्लाई? 1 माइनस tan क्यू से, ये होगा। यस सर। अब क्या करें? सर पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। वेरी गुड। tan क्यू -1, यहां से बच्चे माइनस कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस लिख दिया, क्यों? यहाँ से इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 अपॉन tan क्यू एज लाइक, और यहाँ पे tan क्यू -1 हो जाएगा, -1। माइनस कॉमन लिया तो tan क्यू प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा ना, उसको आगे पीछे लिख सकते हैं ऐसे। एलसीएम क्या आ गया बेटा? tan क्यू -1 into tan क्यू। tan क्यू, और ये कॉमन है तो वो सिंगल टाइम। नाउ tan क्यू -1 इज हियर, tan क्यू into tan स्क्वायर क्यू, tan tan क्यू माइनस, सर 1। यस, दोनों की दोनों टर्म्स हैं, सिर्फ 1 बच गया, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 1 को 1 क्यूब लिख सकते हैं, यस सर। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। सर a - b into a square plus b square plus ab। यस, अब जहां पे a है वहां पे tan क्यू लिख दो। सर माइनस ए भी तो नहीं आएगा? नहीं बेटा, माइनस में ये तीनों प्लस के होते हैं, प्लस वाले में यहाँ प्लस हो जाता है और ए बी माइनस का हो जाता है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता ना, यहाँ प्लस होता और सिर्फ ए बी माइनस का होता, ठीक है? ओके सर। इंटू tan स्क्वायर क्यू प्लस ए बी tan क्यू इंटू 1 tan क्यू प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे बेटा tan क्यू और साथ में tan क्यू -1, ये कैंसिल हो गया, ऊपर 3 टर्म्स है, नीचे 1 टर्म है। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज और हो सकती थी, 1 प्लस सीकेंड इंटू कॉसिकेंड भी बोल सकते थे वो। अगर ये प्रूव करना है, यहां तक तो सेम रहेगा, यहां तक सेम आएगा। अगर ये चीज प्रूव करनी है जो मैंने अभी लिखी है, तो बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिख देंगे। अगर ये करनी है बेटा 1 प्लस tan क्यू प्लस cot क्यू, तो इसको चेंज नहीं करना, ऊपर तीनों सर टर्म्स tan के नीचे स्क्वायर क्यू अपॉन tan क्यू प्लस tan क्यू अपॉन tan क्यू प्लस 1 by tan क्यू। वेरी गुड। tan से tan कट गया, tan क्यू आ गया बेटा, यहां से ये कट गया, 1 आ गया, 1 अपॉन 10 cot आ गया, हो Cot गया क्यू। प्रूफ। कृष्णा ये तेरा प्री बोर्ड का पेपर है? यस सर, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट सेक्शन में था बिल्कुल नहीं सॉल्व हुआ। अब हो जाएगा। यस सर, मैंने एक्चुअली सर स्टार्टिंग में कन्वर्ट नहीं किया था, अब अपनी गलती पता लगी। और ये ना, ये वाली चीज जो इसके इक्वल प्रूव करना है, तुम्हारी बुक में भी लिखवाया था कि इसको इसके इक्वल भी लिख लो, ये भी हो सकता है। यस सर। चलो क्वेश्चन थर्ड बेटा,
A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is this and height is this. Find its volume. इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता. कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कनिष्का? So 1/3 pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच. डायमीटर दिया है बेटा, डायमीटर से उसका हाफ करके रेडियस आ जाएगा. हाइट गिवन है, इसमें वैल्यू फिल करनी है और गेट द आंसर. हो जाएगा. Yes, sir. Second, the angle of elevation of a ladder leaning against a wall is 60 degree and the foot of ladder is 9.5 meter away from the wall. Find the length of the ladder. इससे ज्यादा इजी सम भी नहीं हो सकता. The angle of elevation of a ladder leaning against a wall. ये वॉल है, यहाँ पे एक लैडर ऐसे झुकी हुई है, इसके साथ है. Making the angle of elevation 60 degree given है हमें. And the foot of ladder is 9.5 meter away. Foot of ladder ये होगा, वॉल से कितनी मीटर दूर है? 9.5 मीटर. हाई लेंथ ऑफ लैडर फाइंड करनी है. वही फंडा, जो साइड फाइंड करनी है ऊपर, जो गिवन है वो नीचे. AC खुशबू, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर. यस सर, सब बता रही हूँ. सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. खुशबू, 90 के अपोजिट कौन सी साइड होती है बेटा? हाइपोटेनस. फिर मैं और क्या पूछ रहा हूँ? कोई फारसी तो बोली नहीं मैंने. हाँ सर. एक्यूट एंगल के अपोजिट सर वो परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. और थर्ड साइड क्या बच गई? बेस. फिर बस यस H सर. अपॉन बी. सर कॉस. नहीं, B अपॉन H होता है. H अपॉन बी कॉस का रेसिप्रोकल, सीकेंट 60. ओके. यस सर. AC फाइंड करना है. BC 9.5, सीकेंट 60, कॉस 60, 2/√3 आ जाएगा बेटा. नहीं सॉरी, 2 आएगा. कॉस 60 की वैल्यू 2 होती है बेटा. AC 2 into 9.5, 19 मीटर. लेंथ ऑफ लैडर इज 19 मीटर. आंसर हो गया. यस सर. नेक्स्ट सम, इसका थर्ड पार्ट. Find the equation of line that is parallel to this line and passes through midpoint of line segment joining this and this. Find the equation of line parallel to this. इसके parallel. और कहां से पास कर रही है? Midpoint of line segment joining this and this. (2,7 - 4,1). AB, इसका मिड पॉइंट ले लो P. अब सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला. कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR 2 + -4 upon 2, 7 + 1 upon 2, x1 + x2 upon 2, y1 + y2 upon 2. एक ही ऐसे लाइन में कर देंगे बेटा. -2 upon 2 -1 आ जाएगा, 8 upon 2 4 आ जाएगा. तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास? -1 4. कहते हैं इसमें से कोई लाइन पास कर रही है. मैंने वैसी बना ली, जैसी मर्जी बना लो. और एक और लाइन थी, उसके पैरेलल थी. इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, 2x + 5y = 7. अब इसकी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करें? देखो, एक पॉइंट में से पास कर रही है वो हमें पता है. अगर मुझे इसकी स्लोप पता चल जाए तो हम कर सकते हैं ना. इस इक्वेशन से इसकी स्लोप निकल जाएगी. ये इक्वेशन है ना. 5y is 2x - 2x हो जाएगा +7 and y is -2x upon 5 + 7 upon 5. कंपेयर करो किसके साथ? y = mx + c के साथ. m की वैल्यू क्या आ गई? -2 upon 5 आ गई. नाउ इक्वेशन, we know that वो लाइन लिख के, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन आर सेम. पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो सेम होती है. तो इस लाइन की स्लोप भी क्या आ गई? आल्सो -2 upon 5 ना. अब ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, -1 4 में से. तो y - y1 = mx - x1.
y एज लाइक y1 बच्चे ये 4 हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट में से पास कर रही है ना, उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं। m हमने फाइंड कर लिया है कितना, -2/5, x माइनस x1 -1 मतलब +1 हो जाएगा। कर लोगे इसमें से इक्वेशन फाइंड अभी हो Yes, जाएगी? Yes, sir. किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? सर मुझे नहीं आया। नाजरीन देख बेटा, सिंपल सा फंडा, 2 पॉइंट में से ये 2 पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 7 एंड -4 1। ये है ना, कहते हैं इसका मिड पॉइंट है जो, उसमें से एक लाइन पास कर रही है ना P पॉइंट। इसके मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए -1 एंड 4। अब इस लाइन को तो भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि ये लाइन है, ये कोई पॉइंट है P, इस पे -1 4 है। अब इस लाइन के पैरेलल मतलब एक लाइन और है, उस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 5y = 7 है बेटा। यहां से इसकी स्लोप निकाल लेंगे। नाजरीन बताओ बेटा। यस सर। तो वहां से जो हमने स्लोप निकाली वो आ गई हमारे पास -2/5 आ गई। वो तो पता है ना, y की वैल्यू एक टर्म एक साइड पे रख के यस दूसरी टर्म सर। उस 2/5 आ गई। इसकी स्लोप 2/5 आई है तो इसकी स्लोप भी कितनी होगी, -2/5 ही होगी ना। यस सर। पैरेलल लाइंस की स्लोप जो होती है वो इक्वल होती है, यस और नो? यस सर। अब इसको भूल जाओ, सिर्फ इस दोनों चीजों को ध्यान में रखो। ये x1 y1 हो जाएगा क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है। और इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, y - y1 = m x - x1। y ऐसे ही, y1 ये रहा बच्चे 4, m स्लोप हमने फाइंड कर ली थी -2/5, x - x1 इज -1 तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस एक माइनस ये पड़ा है, एक माइनस इसका आ जाएगा। 5 को ऊपर ले जाओ, 5y - 20 -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 5y + 2x। इसको भी इस साइड लेके आना है, इस साइड ले आओ, -20 + 2 -18 रह जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई बेटा, ठीक है। यस सर। मीन फाइंड करना आता है सबको, बोलो। यस सर। Yes, द sir. फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स स्कोर्ड बाय 140 स्टूडेंट्स। इन सबका सम 140 होगा। कैलकुलेट मीन मार्क्स बाय एनी मेथड। कौन सा मेथड यूज करोगे, बोलो माही, कौन सा मेथड यूज करेगी? सर शॉर्टकट मेथड। स्टेप डेविएशन यूज करना बेटा, ठीक है। सर डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। उसमें लेंथी हो जाएगा बच्चे, टाइम नहीं मिलेगा। सर कर स्टेप सकते हैं, डिविजन सबसे छोटा होता है इसलिए। हाँ जी, उसमें कैलकुलेशन बहुत इजी रह जाती है, -3 -2 -1 ऐसे आता है, ओके सर। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ मेंशन क्या होता कि डायरेक्ट मेथड से करना है तो डायरेक्ट से करना पड़ता। शॉर्टकट का अदर नेम क्या है माही? अज्यूम मीन मेथड। वेरी गुड, एज्यूम मीन मेथड भी लिखा आ सकता है वहां पे, याद रखना। शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, दैट इज द सेम थिंग, एक ही चीज के दो नाम हैं। ओके, कर लोगे बच्चे, ना करवाऊं इसको? यस सर। Yes, sir. Find the equation of line whose x-intercept is 8 and y-intercept is -12. x-intercept 8 है और y-intercept -12 है। x-intercept 8 ये है बेटा, यहां पे कट कर रही है मतलब 8,0 और y-intercept -12 मतलब 0,-12 ये है बेटा। इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, इसका मतलब यही हुआ ना बेटा। Find the equation of line whose x-intercept is 8 and y-intercept is -12। तो ये दो पॉइंट हो गई, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अब दो पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकल जाएगी इसकी,
Yes, sir. Yes, sir. खुशबू m किसके इक्वल? y2 minus y1 upon x2 minus x1. This minus this, minus 2, 12 minus 0 upon 0 minus 8, minus 12 upon minus 8, 4 3s are 4 2s are. स्लोप क्या आ गई 3/2. अब इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो कैसे करें? y minus y1 is equals to mx minus x1. वेरी गुड. y बेटा एज लाइक y1 किसको लूं? 0 को लूं कि इसको लूं? So minus 12. मैं तो 0 को लूंगा. Okay, sir. दोनों में से बच्चे कोई भी एक ले सकते हैं. इसको x1 y1 लेना है तो भी ले सकते हैं, इसको लेना है तो इसको ले. Yes, sir. दोनों से आंसर सेम आएगा. ये नहीं है कि इससे डिफरेंट आएगा इससे डिफरेंट आएगा, नहीं, आंसर सेम आएगा बेटा. ओके Yes, sir. यहाँ पे 8. अगर हमने ये लिया तो ये लेना पड़ेगा, अगर ये लेते तो ये लेना. ठीक है. Yes, sir. 2y इस साइड Sir, 3x. sir. हाँ बोलो. अच्छा सर, ठीक है. हाँ सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी. y minus 0 आपने डायरेक्ट लिख दिया था ना, मल्टीप्लाई 2 करके. ओके सर. 2 से किया बेटा, 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा ना, उसकी जरूरत नहीं हाँ है. सर. यस सर. ये इक्वेशन ऑफ लाइन. आप नाज़रीन समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट वन. सर मेरे को एक बात और पूछनी थी उसमें. हाँ बेटा बोलो. सर जैसे अभी आपने ये वाला डायग्राम बनाया है इस क्वेश्चन के लिए, हम सिंपल लाइन बना दें क्योंकि हमें पता है y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है और x पे y की वैल्यू 0 होती है. हाँ जी बेटा. ओके सर. वैसे इसको बना लेगी ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है सर. ठीक है, छोटा सा रफली बनाना है, कौन सा ग्राफ पेपर में बनाना है. ओके सर. नेक्स्ट वन. Numbers 50 this are arranged in descending order. Descending order में already arranged है. Median is given, find x. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 टर्म्स हैं. तो अक्षरा मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? So median is equal to sum of all observations upon number of observations. तो मीन का क्या होता है? Sorry sir, median का formula होगा n/2 for even numbers. n upon 2th term plus n upon 2 plus 1th term divided by 2. ये फॉर्मूला होगा बच्चे इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए. ठीक है, 9th में किया था ये. Yes sir. मीडियन हमें गिवन है कितना? 25 दिया हुआ है. n की वैल्यू 10 टर्म्स थी. 10 upon 2 5th टर्म, 10 upon 2 5 plus 1 6th टर्म, 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 50. अब यहाँ बचे 5th and 6th टर्म फाइंड कर लो. ये कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5. 5th टर्म ये वाली है, 6th टर्म ये वाली है. 2x plus 10 plus 6th टर्म 2x minus 8 is equal to 50. हो जाएगा 50. 4x 2 साइड जाके माइनस हो गया 48. 12 is the answer. समझ आ गया बच्चे ये? Yes. Yes sir. Next one. From a solid cylinder of height this and radius this, a conical cavity of radius this and height this is drilled out. Total surface area of the remaining solid. चलो. From a solid cylinder, एक solid cylinder बना लेते हैं बेटा हम. Of height 36 and radius 14. A conical cavity of radius 7 and height 24 is drilled out. ये कौन इस टाइप का कौन निकाल के बीच में से फेंक दिया. उसका रेडियस कितना है? 7 है और हाइट 24 है. इसको कैपिटल H कैपिटल R ले लो बेटा, इसको स्मॉल r स्मॉल h ले लिया. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड
यस माही, Sir, 2 pi RH capital R plus pi capital R square plus pi capital R square minus pi small r square वेरी गुड, plus pi RL. यस बेटा। देखो 2 पाई RH सिलेंडर का कर्व तो पड़ा है ना, सेम टू सेम। ये नीचे वाला सरफेस भी है, दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये वाला सरफेस जहां पे मैं अभी लाइंस लगा रहा हूं, ये बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस, क्योंकि इस सरफेस को तो टच कर सकते हैं ना हम, यस और नो? समझ आया ये क्यों किया? Yes. प्लस यहां से बच्चे ये भी सरफेस बन गया ना, जो कोनिकल कैविटी कट आउट की है, बाहर निकाली है, तो उसको भी तो टच कर सकते हैं, दैट इज पाई RL। एल फाइंड कर लोगे पहले, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एल फाइंड हो जाएगा ना? Yes. कर लोगे इसको कैलकुलेट? ना करूं? Yes, बोलो। sir. सर अगर वो कहते कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड तो फिर कुछ भी नहीं था, फिर बड़े में से सिलेंडर के वॉल्यूम में से कौन का वॉल्यूम माइनस कर देते बेटा, ठीक है? ओके सर। एरिया में ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एरिया में जिस सरफेस को टच कर सकते हैं, जितना सरफेस इंक्रीज होगा वो ऐड होगा। उन्होंने लिखा चाहे रिमेनिंग है, वो रिमेनिंग वर्ड जानबूझ के लिखते हैं कंफ्यूज करने के लिए, कि जिसने सिर्फ फॉर्मूलाज याद किए हैं वो बीच में से माइनस करेगा ही करेगा, बट थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो वो इंक्रीज हो रहा है। ओके यस तो सर। नेक्स्ट है बेटा वो ग्राफ है, प्लॉट द पॉइंट 46 and B21 12 is the image of A dash is the image of A when reflected in x axis। वो तो सीधा ही हो जाएगा, x axis के साथ किसका साइन चेंज होता है? Right. 5 4, -6 आ जाएंगे A dash के। B dash is the image of B reflected in the line A dash। ये देखना पड़ेगा ग्राफ पेपर पे बेटा, ठीक है? ये सारा चलो Yes. छोड़ दो। नेक्स्ट सम, इस फिगर के अंदर बेटा, ये फिगर दी हुई है, हमने ABC एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ये हमें 60 दिया है, ये 55 दिया है। Sir, angle ACB will be 55. Yes, sir. ACB 55 हो जाएगा, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, फिर तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। Yes. ये फाइन Yes, sir. दिस वन, एक मिनट, चलो बच्चे आगे खुद ट्राई करना अभी, ठीक है? मुझे जाना पड़ेगा अभी, ओके? या कल कर लेंगे पहले ये, उसके बाद आगे शुरू करेंगे, ओके? Okay, sir. कल से थोड़ा जल्दी करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया मैं। चलो Okay, ठीक है sir. बच्चे। Thank